Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel. So this is the most important video of wastewater engineering, which is a portion of environmental engineering. So in this video we will be discussing the theory related to activated sludge process, which will be helpful to you in solving the numericals related to activated sludge process. This is very important topic as per the GATE point of view as well as from SSC point of view. In GATE several questions have been framed, and in another video I have also solved those numericals. You can also refer to that video, and at the end of the video you will be confident enough in solving the numericals related to activated sludge process, because I will be discussing in depth this process. So without any delay, let's get started. See, you all know that in the process of treatment of sewage as well as in the process of treatment of raw water, although we are talking about the treatment of sewage in this particular portion in wastewater engineering, what happens, there are two processes. One contains the primary treatment and second consists of the secondary treatment. The major chunk of the suspended solids is removed in the primary treatment, and the major chunk of the BOD or the organic matter is removed in the secondary treatment. This is the very basic point that you all might be already knowing. Second point is that primary treatment also removes BOD. It is not that primary treatment will remove 0% BOD. It also removes BOD, but the BOD removed is in minor proportion in the primary treatment, whereas in the secondary treatment solids are also removed. Like the primary treatment is mainly for solid removal and secondary treatment is mainly for BOD removal. Although secondary treatment is mainly for BOD removal, but still it removes some chunk of suspended solids. Similarly, primary treatment also removes some portion of the BOD, like 40% and something around that. So activated sludge process is a part of secondary treatment, and there are, see, secondary treatment means it will be removing the BOD. BOD means the organic content. Organic content means L. Okay, so activated sludge process will be removing organic content. How can you remove organic content? Organic content is fed by the microorganisms. Microorganisms, what they do, they decompose the organic content, and by decomposing the organic content they reduce the BOD or the oxygen demand for that particular sewage. Now how can you introduce microorganisms? So there are again two methods of introducing the microorganisms. The one is attached growth system, that is called as AGS, and second one is the suspended growth system, that is SGS. Now you might be wondering what is AGS and what is SGS. So attached growth system is a particular process of secondary treatment used for BOD removal, in which the biomass layer, what does biomass layer consist of? See, by microorganisms I mean biomass. Biomass may not be the actual living microorganisms, but they might consist of like some decomposed organic matter. Decomposed organic matter, this contains some dead microorganisms. It might also contain some other microorganisms that are dead. Okay, so this is all about the biomass. Biomass is produced during the decomposition and due to the killing of the microorganisms, which depends upon the growth rate of microorganisms. I hope you get this. Also, decomposed organic matter contribute to the biomass production. So this is about biomass. Biomass does not directly means microorganisms, but it indirectly means microorganisms. This decomposed organic matter will be full of dead microorganisms, which will get activated when we introduce sewage there. So AGS is a process in which the biomass layer is grown over a medium over which the sewage is applied. There is one particular medium. Suppose this is a medium. Here what do? We grow a biomass layer by decomposing the organic matter or by some other means. So if this is a method of used to remove the BOD, this is called as activated growth system. Second is suspended growth system. Suspended growth system, in suspended growth system what do? We do not grow the biomass layer. Instead we apply the biomass over the sewage. Suppose the sewage is flowing in some tank and we add the biomass here.
So this is called as suspended growth system. I hope you get the difference. Activated sludge process is a part of suspended growth system. Here we do not directly grow the layer, but instead what do we do? In the aeration tank, the sewage comes from the primary sedimentation tank after getting the solids settled. The water comes, sewage water comes to the aeration tank, and in the aeration tank we add this biomass layer. From where this biomass layer will come? Biomass layer will come from some other tank. Suppose this is one another tank. In this tank, what do? We fill some organic matter, and this organic matter is fed by some microorganisms or by some other means. This decomposed organic matter will behave as the biomass. This is what it is called as biomass. Biomass is also called as biomass is also known as MLSS. MLSS means mixed liquor suspended solids. These suspended solids of organic matter can also behave as a biomass, because this MLSS will be rich in dead microorganisms which will get activated when the sewage is applied. So this MLSS or this biomass is one or the same thing. This MLSS is applied over the aeration tank. When the sewage comes, the microorganisms get activated, they feed on the organic matter, they reduce the organic matter to some particular value. It will not be zero completely, it depends upon the volume. So after the aeration tank, it goes to the secondary sedimentation tank, and from there it comes as a recirculation. So I will explain this process, just wait. So I hope you get what is the meaning of biomass, you get what is the meaning of AGS and SGS. So now let's come back to the activated sludge process and what this process is. What are these terms? You might be confusing as of now that what is Q0, what is S, what is XU, what is XE, what is QR, and what is QW, but I will be explaining you completely, so just wait. See, now what happens? Water, first of all, sewage water, this Q0 represents the discharge. Discharge can be in, suppose, liters per day or meter cube per second. This is the discharge, sewage discharge that is coming to the primary sedimentation tank. What is this SM? See, this SM is the food. Food means the BOD value or the organic matter or the organic content. This is the organic matter, food or BOD. This is what a microorganism will feed upon. For microorganism, this BOD or the organic matter is food. That is why we depict the BOD or organic content as food in this activated sludge process. I hope you get this. What is SM? जो PST से पहले डिस्चार्ज आ रहा है उसके अंदर जितना BOD प्रेजेंट है वो है SM. उसका जो डिस्चार्ज है वो है Q0. Now this Q0 with this SM BOD content will pass through the PST. This SM will have the unit of milligram per liter. जैसे हम BOD की बात करते हैं, ये BOD ही है, बस इसका नाम फूड है. This will pass through the primary sedimentation tank. प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में आने के बाद इसका सॉलिड कंटेंट तो डेफिनेटली रिड्यूस होगा. हालांकि सॉलिड कंटेंट की यहां चर्चा नहीं करी जा रही है, बिकॉज BOD इज व्हाट मैटर्स इन द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस. तो इसका सॉलिड कंटेंट चेंज होगा, लेकिन इसका फूड कंटेंट भी चेंज होगा, यानी कि कुछ पार्ट ऑफ BOD भी PST रिमूव करता है. यही मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था, और इसलिए बताया था कि PST BOD भी थोड़ा सा रिमूव करता है. इसलिए अब BOD SM से चेंज होकर, यानी कि कम होकर S0 हो जाएगा. तो PST के बाद जो डिस्चार्ज है वो तो सेम रहेगा, क्योंकि PST ने डिस्चार्ज नहीं खाया, डिस्चार्ज एज इट इज भेजा Q0, लेकिन कुछ पार्ट ऑफ BOD को कम करके S0 कर दिया. तो अब न्यू फूड वैल्यू क्या है हमारे पास? S0 है. नाउ यू कैन ऑल्सो सी वन मोर टर्म हियर रिटन एज X0. What is this X0? See, this X0 is the amount of microorganisms or the biomass already present in this particular sewage. जब भी कोई सीवेज जाता है उसके अंदर क्या होता है? थोड़ा सा डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है, या कोई माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी फीड कर रहे होते हैं उस ऑर्गेनिक कंटेंट के ऊपर. कुछ ऑलरेडी बायोमास या MLSS जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है वहां पर. तो ये X0 जो है हमारे पास, ये बायोमास है जो कि ऑलरेडी सीवेज में प्रेजेंट है. हालांकि जब आप एजम्पशंस को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकमिंग सीवेज जो होता है उसका बायोमास हम
नेग्लेक्ट कर देते हैं. दैट मीन्स इसको हम 0 मिलीग्राम पर लीटर मानते हैं, बट दिस इज जस्ट एन एग्जम्पशन. इन द क्वेश्चन समटाइम्स द एग्जामिनर में गिव यू सम पर्टिकुलर वैल्यू फॉर दिस बायोमास कि इसके अंदर इतना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंटेंट जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है. आई होप यू गेट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Q0, S0 and X0. Now what matters to you are these three values. एरेशन टैंक में Q0 आ रहा है, S0 आ रहा है और X0 आ रहा है. Q0 is the discharge, S0 is the BOD जो एरेशन टैंक के अंदर आ रहा है. This is called as effluent sewage. आपके लिए जो सीवेज मैटर करता है वो ये वाला मैटर नहीं करता, ये तो पीएसटी में जा रहा है. ये सीवेज आपके लिए मैटर करता है. ये सीवेज क्या है आपका? इन्फ्लुएंट सीवेज कहलाएगा आपके लिए. ये एरेशन टैंक में जाता है. अब सारा प्रोसेस जो होता है बीओडी रिमूवल का वो आपका सिर्फ और सिर्फ एरेशन टैंक में होता है. ये आपका सेकंड एजम्पशन है कि आपका सारा बीओडी का जो प्रोसेस है रिमूवल होने का वो कंप्लीटली एरेशन टैंक में होता है. अब V क्या है, X क्या है, S क्या है जो मैंने एरेशन टैंक के अंदर बनाया है. V तो सीधी सी बात है एरेशन टैंक का वॉल्यूम है जो आप फॉर्मूलाज में यूज करेंगे. एरेशन टैंक का जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा बेटर है आपके लिए, क्योंकि उतना ही अच्छा आपका बीओडी रिमूवल होगा. तो V जो है वो एरेशन टैंक का वॉल्यूम है. X क्या है? मैंने आपको बताया था कि ये एक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम है. तो यहां पर जब सीवेज आता है तो आप इसके अंदर एक बायोमास की लेयर जो है वो इस एरेशन टैंक के अंदर ऐड करते हैं. तो आप कितना बायोमास ऐड कर रहे हैं इस एरेशन टैंक के अंदर, वो है हमारा X. तो बेसिकली वी कैन कॉल X एज द बायोमास कंटेंट इन द एरेशन टैंक. हालांकि एरेशन टैंक में ये पहले से मौजूद नहीं है. वी आर नॉट ग्रोइंग अ लेयर. अगर हम लेयर ग्रो करते तो वो एक एक्टिवेटेड ग्रोथ सिस्टम हो जाता. वी आर सस्पेंडिंग अ लेयर ऑफ बायोमास with the content of X. This X is the biomass content that we add in the aeration tank, or we can say that it is present in the aeration tank for the time being. Okay. What is S now? S एरेशन टैंक के अंदर कभी भी नहीं होता है. S एरेशन टैंक का प्रोसेस जब खत्म हो जाता है उसके बाद जितना भी बीओडी हमारे पास बचता है वो कहलाता है S. See, let me explain you. This is your aeration tank. यहां से आपका Q0, S0 और X0 का डिस्चार्ज आ रहा है. अब एरेशन टैंक में क्योंकि हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड करे हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं? बायोमास और MLSS कहलाते हैं. इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है? इसकी कंसेंट्रेशन है X. इसका वॉल्यूम कितना है? इसका वॉल्यूम है V. जब ये बायोमास का लेयर जो है वो इस वाले सीवेज के ऊपर डिकम्पोज करेगा, इसके ऑर्गेनिक मैटर को रिड्यूस करेगा, तो जो इसके अंदर बीओडी फाइनल बचेगा सीवेज के अंदर, सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने सारे सीवेज पे फीड कर लिया वो जितना कर सकते थे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग. उसके बाद जो इस सीवेज वाटर जो है इसका जो फाइनल बीओडी होगा वो कहलाता है S. सो आई होप यू गेट इट नाउ. S इज द बीओडी or the food or the organic matter of the treated sewage in the aeration tank. Okay. Now what happens? This aeration tank में से कुछ सीवेज वापस आया. Q0 तो आएगा ही आएगा, लेकिन हम एक रिसर्कुलेशन और करते हैं. अब रिसर्कुलेशन क्यों किया जाता है? पहले मैं आपको रिसर्कुलेशन के बारे में बाद में बताऊंगा. अभी एज्यूम कर लो कि यहां से कुछ रिसर्कुलेशन किया है तो जिसकी वजह से Q0 से Q0 प्लस QR हो गया है. तो अब एरेशन टैंक से Q0 भी आ रहा है जो ओरिजिनल डिस्चार्ज था, और साथ में कुछ रिसर्कुलेटेड डिस्चार्ज भी आ रहा है. ये रिसर्कुलेटेड डिस्चार्ज और ओरिजिनल डिस्चार्ज आएगा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में. यहां पर क्या होगा? सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है? जो आपके पास बायोमास आया इस पानी से, ये जो पानी यहां से निकल के आएगा उसके अंदर आपका जो ये बीओडी बचा हुआ है S, ये तो होगा ही होगा, डेफिनेट सी बात है. उसके साथ साथ कुछ आपका बायोमास की लेयर भी साथ में आती है. जब पानी सीवेज का ट्रेवल कर रहा है तो कुछ डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बायोमास भी इसके साथ साथ यहां पर ट्रेवल करेंगे. वो सारे सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में नीचे सेटल करेंगे. साथ में कुछ सॉलिड्स भी होते हैं सीवेज में, वो भी सेटल करेंगे. और साथ में ये बायोमास जो यहां से उठकर आया, पूरा बायोमास नहीं आएगा कभी भी, पर सीवेज जा रहा है तो कुछ पार्ट ऑफ बायोमास विल ऑलवेज कम विद द सीवेज. सो दैट बायोमास प्लस द सॉलिड्स विल सेटल इन द सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, एंड दिस सेटल्ड सीवेज इज कॉल्ड एज स्लज. इसे हम कहते हैं स्लज. ये रिच होता है और इसमें बायोमास कंसंट्रेशन में, क्योंकि यहां से जो भी बायोमास जाएगा वो सारा नीचे सेटल कर जाएगा. सॉलिड्स भी है इसमें, लेकिन जितना भी यहां से थोड़ा सा गया है, पूरा नहीं गया, लेकिन जितना भी यहां से बायोमास इसमें उठकर जाएगा वो सारा नीचे सेटल कर जाएगा. दिस इज वाई दिस स्लज इज रिच इन बायोमास, और द MLSS कंसंट्रेशन इसका बहुत ज्यादा होता है.
अब यहां से सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से आपका Q0 माइनस QW डिस्चार्ज चला जाएगा। आपका इनिशियली Q0 डिस्चार्ज आया था, लेकिन आपका फाइनल जो जा रहा है वो Q0 माइनस QW जा रहा है। क्यों कुछ डिस्चार्ज जो है वो हम वेस्ट कर देते हैं, कुछ हम रिसर्कुलेट करते हैं, कुछ हम वेस्ट करते हैं। वेस्ट क्यों करते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां से Q0 माइनस QW डिस्चार्ज जो है वो चला जाएगा। ये डिस्चार्ज जो है ये ऊपर फ्लोटिंग वाटर जो होता है सीवेज का वो पार्ट है। अब इस जो ये डिस्चार्ज हमारा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से पास हुआ है ये अब हमारा क्लीन सीवेज है। हालांकि कुछ हमारा डिस्चार्ज लॉस हो गया है, लेकिन फिर भी एक मेजर चंक हमको वापस मिला जो कि हमारा ट्रीटेड सीवेज है। तो Q0 माइनस QW विल कम आउट ऑफ द सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। नाउ सी द फूड विल रिमेन सेम। सीवेज में ही हमारा बीओडी था, सीवेज में ही हमारा ऑर्गेनिक कंटेंट था। तो जो यहां से आया सीवेज इसका भी हमारा बीओडी एस है और फूड एस है, और जो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में आया उसका फूड भी हमारा एस है, बीओडी एस है, और जो बाहर चला जाएगा उसका बीओडी भी हमारा सेम रहेगा, एस रहेगा। लेकिन ये हमारा XE है। ये XE क्या है मैंने आपको बताया। XE क्या था हमारे पास बायोमास कंसेंट्रेशन था। तो क्योंकि सारा बायोमास मैंने आपको बताया सेटल कर गया, तो जो फ्लोटिंग सीवेज है उसके अंदर बहुत लाइट MLSS रह जाता है, यानी कि बहुत हल्का जो बायोमास होगा वो यहां पर रह जाता है। तो जो बायोमास की कंसेंट्रेशन फ्लोटिंग सीवेज में होती है वो है हमारे पास XE। तो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से जो भी डिस्चार्ज हमारा निकल रहा है, पहली बात तो वो Q0 माइनस QW है, थोड़ा सा वेस्ट होके निकल गया, कम हो गया, ठीक है। सेकेंड चीज फूड जो है अब वो यहां से लेके हर पॉइंट तक अब फूड जो है एरेशन टैंक के बाद सेम रहेगा, यानी कि बीओडी में कोई चेंज नहीं आएगा। बीओडी का कंसेंट्रेशन आपका मिलीग्राम पर लीटर हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज हमारा जो MLSS कंसेंट्रेशन है, क्योंकि सारा MLSS मोस्टली बैठ गया है नीचे, सेटल कर गया है स्लज के फॉर्म में, तो जो थोड़ा सा फ्लोटिंग MLSS कंसेंट्रेशन होगा वो XE होगा। हालांकि हम एज्यूम करते हैं कि ये भी हमारा क्या है, ऑलमोस्ट जीरो है, बट क्वेश्चन में आपको ये कभी जीरो ना भी देकर इसकी कुछ वैल्यू दे सकता है 20 मिलीग्राम पर लीटर और 30 मिलीग्राम पर लीटर, बट इसकी वैल्यू बहुत कम होगी। लेकिन स्लज में जो हमारे पास X होता है उसकी वैल्यू हमारी ज्यादा होगी। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से जो हमारा रिसर्कुलेटेड डिस्चार्ज है उसके बारे में। नाउ सी व्हाट हैपेंस, एरेशन टैंक में हमको फूड बाय बायोमास रेशियो जो है इसे हम कहते हैं F/M रेशियो, फूड बाय बायोमास रेशियो हमको मेंटेन करना होता है। फूड क्या है हमारे पास, फूड है हमारे पास बीओडी, और बायोमास क्या है हमारे पास, बायोमास है हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यही हमारा मेन फंडा है कि एरेशन टैंक में हमको F/M रेशियो हमको मेंटेन करना है। अगर हमारे पास फूड ज्यादा हो जाएगा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारा प्रोसेस बेकार हो जाएगा। फूड बीओडी हमारे पास ज्यादा है लेकिन उसको डिकम्पोज करने के लिए हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही कम है, तो हमारा प्रोसेस बेकार। तो F/M रेशियो हमारा कम नहीं होना चाहिए। अब अगर हमारे पास फूड कम हो जाएगा लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज्यादा होंगे, फूड की स्कैरसिटी होगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपस में एंडोजिनस रिएक्शन करेंगे और आपस में एक दूसरे के ऊपर फीड करेंगे। इससे हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लेयर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, आने वाला फूड जो है वो डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, यहां भी प्रोसेस हमारा बेकार हो जाएगा। इसलिए F/M रेशियो जो है वो हमारा ऑप्टिमम होना चाहिए। इसी वजह से हम क्या करते हैं, F/M रेशियो को ऑप्टिमम करने के लिए हम क्या करते हैं, दो चीजें करते हैं। एक रिसर्कुलेशन करते हैं और एक हम क्या करते हैं, QW वेस्ट करते हैं कुछ डिस्चार्ज। नाउ सी इफ द रेशियो इंक्रीजेस दैट मीन्स द बायोमास कंसेंट्रेशन इन द टैंक इज लेस। हमारे पास बायोमास कंसेंट्रेशन जो है वो कम है, हमारा फूड बायोमास रेशियो बढ़ गया, ये बढ़ेगा तो फूड ज्यादा हो जाएगा और बायोमास जो है वो हमारे पास एरेशन टैंक में कम हो जाएगा। अगर हमारा फूड बाय मास रेशियो जो है वो बढ़ता है तो इस केस में हम क्या करेंगे, रिसर्कुलेट करेंगे डिस्चार्ज को। डिस्चार्ज को रिसर्कुलेट करने से क्या होगा, हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कंटेंट जो है वो वापस से बढ़ जाएगा, इससे हमारा फूड बाय मास रेशियो जो है वो ऑप्टिमम हो जाएगा। मैंने आपको बताया जो स्लज सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल करता है ये बहुत ज्यादा रिच होता है बायोमास में, यहां से जितना भी बायोमास आया वो सारा सेटल कर जाता है, इसलिए स्लज बहुत रिच होता है। तो अगर आपने स्लज को यहां उठाकर भेज दिया वापस से एरेशन टैंक में तो इससे क्या होगा, आई एम सो सॉरी दिस, ये जो रिसर्कुलेशन होता है वो एरेशन टैंक में होता है। तो ये जो आपका रिसर्कुलेशन होगा पूरा का पूरा, ये रिसर्कुलेशन की वजह से क्या होगा, क्योंकि आपने रिसर्कुलेट क्या किया है, स्लज को रिसर्कुलेट किया है। स्लज को रिसर्कुलेट करने का मतलब क्या, आपने बायोमास बहुत ज्यादा था उसमें, वो आपने इसमें भेज दिया, वो भेजने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ गया। फूड तो उतना ही था, फूड तो हमने चेंज किया नहीं, इसमें फूड से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन बायोमास से फर्क पड़ जाएगा। तो फूड बाय मास रेशियो हमारा वापस से ऑप्टिमम हो जाएगा, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहां पर रिसर्कुलेशन कर दिया। सेकंड केस क्या है, हमारा फूड बाय मास रेशियो क्या हो जाए, कम हो जाए।
अगर हमारा फूड बाय मास रेशियो कम हो गया, इसका मतलब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ गए, फूड कम हो गया। तो अब हमको क्या करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम करना है। तो हम क्या करेंगे, कुछ डिस्चार्ज यहां पे वेस्ट कर देंगे। यहां रिसर्कुलेशन ना करने की जगह हम वेस्ट कर देंगे कुछ डिस्चार्ज। जिससे क्या होगा, हमारा जो पूरा कंटेंट जा रहा था वो कम जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम जाएंगे, एम कम हो जाएगा, एफ ऑलरेडी कम था, फूड बाय मास रेशियो वापस से ऑप्टिमम हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो यहां हमने वेस्ट कर दिया। तो ये दो प्रोसेसेस थे, रिसर्कुलेशन का और वेस्टेज का। रिसर्कुलेशन क्यों किया जाता है, फूड बाय मास रेशियो को ऑप्टिमम करने के लिए। वेस्टेज क्यों किया जाता है, फूड बाय मास रेशियो को ऑप्टिमम करने के लिए। जब फूड बाय मास रेशियो बढ़ जाता है तो हम रिसर्कुलेशन कर देते हैं, जब फूड बाय मास रेशियो कम हो जाता है हम वेस्टेज कर देते हैं। इसलिए जो हमारा फाइनल डिस्चार्ज निकला था वो Q0 माइनस QW निकला था। नाउ सी, यहां से तो हमारा Q0 प्लस QR आ रहा है, ठीक है, और यहां से हमारा Q0 माइनस QW जा रहा है। तो यहां कितना जाएगा, Q0 प्लस QR आ रहा है और Q0 माइनस QW यहां जा रहा है। तो आप मास कंजर्वेशन लगा सकते हैं सिंपली। कैसे लगाएंगे, Q0 प्लस QR, ये क्या है, इनकमिंग है, और ये क्या है, आउटगोइंग है। तो Q0 माइनस QW प्लस से ये R की वैल्यू निकालनी है हमको, ठीक है। तो R क्या होगा, Q0 से Q0 कट जाएगा तो QR प्लस QW, ये हमारा यहां से डिस्चार्ज जो है वो रिसर्कुलेट होगा। ये R की वैल्यू आ गई हमारे पास, इतना आ रहा है और ये जा रहा है और ये भी जा रहा है। तो आप सिंपली कंजर्वेशन का लगा सकते हैं रूल, तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अब यहां जो डिस्चार्ज हमारा यहां से जाएगा वो है QR प्लस QW। इसे हम QU कह सकते हैं, इसको एडिशन को हमने QU कह दिया। व्हाट इज XU एंड S? S तो मैंने आपको बताया, फूड तो है, जो BOD है वो हर जगह कांस्टेंट रहेगा। जब आया था तो S0 था, एरेशन टैंक से जाने के बाद हर जगह फूड की वैल्यू S रहेगी, यहां भी S रहेगी, यहां भी S रहेगी, यहां भी S रहेगी। यहां पर जो बायोमास की कंसंट्रेशन है वो XU है। यहां मैंने बताया था XE है। XE क्यों है, क्योंकि फ्लोटिंग है, बहुत कम होती है, वो XE निकल गया। यहां XU है। XU क्या है, क्योंकि अब यहां से स्लज सर्कुलेट किया जा रहा है। जो सीवेज का वाटर था वो हमने यहां सर्कुलेट कर दिया, जो स्लज है नीचे पड़ा हुआ वो हमने यहां सर्कुलेट किया है। तो अब ये जो स्लज था वो रिच है बहुत ज्यादा बायोमास कंसंट्रेशन में, इसकी वजह से ये जो है हमने ये अलग लिया है, ये अलग लिया है। यहां बायोमास कंसंट्रेशन XU है, यहां बायोमास कंसंट्रेशन XE है, यहां बायोमास कंसंट्रेशन X है, ठीक है। ये रिसर्कुलेट हुआ, यहां पर भी सेम रिसर्कुलेशन डिस्चार्ज ही वेस्ट कर रहे हैं और यहां पर हम रिसर्कुलेट कर रहे हैं। तो यहां XU रहेगा, यहां पर भी XU रहेगा, यहां S रहेगा, यहां S रहेगा। तो ये डायग्राम आपके दिमाग में बना रहना चाहिए हर टाइम पे। आपको पता होना चाहिए कहां S है, कहां XE है, कहां XU है, कहां X है, कहां Q0 माइनस QW जाएगा, कहां QU जाएगा, यहां QR जाएगा, यहां QW जाएगा। जब यहां QR गया तो Q0 प्लस QR विल गिव यू Q0 प्लस QR। आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर टू यू। अब आपके पास कुछ फॉर्मूलाज हैं, अगर आपको डायग्राम क्लियर है तो फॉर्मूलाज तो बहुत सिंपल है। नाउ लेट अस लुक एट द फॉर्मूलाज। तो वेरी फर्स्ट फॉर्मूला इज डिटेंशन टाइम which is called as TD और it is also called as hydraulic retention time. Remember this. तो आपको पता है Q इक्वल होगा आपका एरेशन टैंक में हो रहा है पूरा डिटेंशन, इसलिए TD इक्वल्स टू V वॉल्यूम ऑफ द एरेशन टैंक डिवाइडेड बाय एरेशन टैंक में कितना डिस्चार्ज आ रहा है डिवाइडेड बाय Q0। तो इसलिए हमारे पास TD की वैल्यू जो होगी वो V डिवाइडेड बाय Q0 होगी। एज सिंपल एज दैट। सेकेंड पॉइंट इज ऑर्गेनिक लोडिंग रेट OLR। ऑर्गेनिक लोडिंग रेट मतलब क्या होता है, आप कितना फूड, ऑर्गेनिक मतलब क्या है, BOD। ऑर्गेनिक कंटेंट क्या होता है, BOD, और BOD क्या है हमारे पास S। तो आप कितना S जो है वो एरेशन टैंक में अप्लाई कर रहे हो, कितना ऑर्गेनिक लोडिंग रेट है आपका। और अगर आपको याद हो तो एक और वीडियो हमने करी थी जिसमें हमने ट्रिकलिंग फिल्टर के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने ऑर्गेनिक लोडिंग रेट का फॉर्मूला देखा था। तो दैट इज Q0 S0 डिवाइडेड बाय V। Q0 क्या है, कितना डिस्चार्ज आ रहा है, और S0 क्या है, कितना हमने BOD अप्लाई किया, यानी कि कितना इसका सीवेज जो आ रहा था उसका BOD कंटेंट कितना है, फूड कितना है। तो Q0 इंटू S0 विल गिव यू द फूड कंटेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ऑर्गेनिक लोडिंग रेट होता है पर यूनिट वॉल्यूम, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट होता है पर यूनिट सरफेस एरिया। सो इसकी यूनिट्स क्या होंगी, तो यूनिट शुड बी रिमेंबर्ड किलोग्राम पर डे पर मीटर क्यूब। सो दिस इज द ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। अब आपको फॉर्मुलाज याद नहीं करने, अब आपको हर टर्म के बारे में पता है। ये एरेशन टैंक के अंदर चल रहा है सारा, जो आ रहा है एरेशन टैंक के अंदर यही हम लोड कर रहे हैं। एरेशन टैंक में हम कितना सीवेज लोड कर रहे हैं, Q0 इंटू S0, मतलब बेसिकली हम कितना ऑर्गेनिक कंटेंट लोड कर रहे हैं, दैट इज Q0 इंटू S0 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। थर्ड पॉइंट, स्पेसिफिक यूटिलाइजेशन रेट। स्पेसिफिक यूटिलाइजेशन रेट, इसका मतलब क्या होता है,
स्पेसिफिक यूटिलाइजेशन रेट का मतलब होता है, ये होता है रेशियो मास ऑफ द बीओडी रिमूव टू द मास ऑफ द बायोमास इन द एरेशन टैंक। हमने कुछ बायोमास अप्लाई किया था, ये हमारा बायोमास है, इस बायोमास ने क्या किया, कुछ बीओडी को फीड किया, तो हम ये यूटिलाइजेशन देखते हैं कि इस बायोमास ने कितना बीओडी को यूटिलाइज किया है, सीधी सी बात है। तो बायोमास का काम कहां चल रहा है, एरेशन टैंक के अंदर चल रहा है, और जो फूड यूटिलाइजेशन हो रहा है वो कहां हो रहा है, वो भी एरेशन टैंक के अंदर हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्यू नॉट S माइनस एस नॉट डिवाइडेड बाई वी एक्स। ये कैसे आया, क्यू नॉट तो डिस्चार्ज है, S माइनस एस नॉट, एस आपके पास जो फूड इनिशियली बीओडी था वो, और एस नॉट माइनस एस, दिस विल बी एस नॉट माइनस एस डिवाइडेड बाई वी एस। एस नॉट क्या है, जो आपके पास इनिशियली फूड आ रहा है, यानी कि इनिशियली बीओडी आ रहा है। एस जो है वो आपका फाइनल जो इसमें से निकल रहा है, पूरा ट्रीट होने के बाद इतना बीओडी बचता है। तो यूज कितना हुआ बीओडी, एस नॉट आया था, एस चला गया, तो यूज कितना कर लिया बायोमास ने, इतना बीओडी को खा गया। तो एस नॉट माइनस एस इज द बीओडी यूज्ड। डिस्चार्ज कितना था, क्यू नॉट, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। कितने बायोमास ने यूज किया है, ये V इंटू एक्स। एक्स क्या था, कंसेंट्रेशन ऑफ बायोमास जो इस पे फीड कर रहा था। V क्या है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप इसकी ये यूनिटलेस आएगा हमारे पास, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, ये 3 फॉर्मुलाज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारे पास, रीसर्कुलेशन रेशियो। रीसर्कुलेशन रेशियो, तो ये तो बहुत सिंपल है, रिसर्कुलेशन रेशियो तो आप पढ़ते आ रहे हैं एनवायरमेंट में, क्यू आर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब इसका एक डेरिवेशन हो रहा है जिसमें मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा डिटेल्ड है, तो आप सीधे से इसको याद रख सकते हैं। क्यू आर अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स यू माइनस एक्स। एक्स क्या है, एरेशन टैंक में जो बायोमास का कंसेंट्रेशन है, एक्स यू जो आपका रिसर्कुलेटेड डिस्चार्ज और वेस्टेज डिस्चार्ज है उसमें जो आपका बायोमास का कंसेंट्रेशन है वो है एक्स यू। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार आपको वो एक्स क्यू आर और क्यू नॉट देके एक्स यू पूछ सकता है। सो नेक्स्ट फॉर्मूला इज कॉल्ड एज फूड बाय मास रेशियो, F बाय M। इसके बारे में तो हमने बहुत ज्यादा डिटेल में बात की है। तो फूड क्या है हमारे पास, फूड है हमारे पास क्यू नॉट इंटू एस नॉट, क्यू नॉट आ रहा है और एस नॉट हमारा जो है वो भी आ रहा है। तो इतना हमारे पास ऑर्गेनिक कंटेंट अवेलेबल है, यहाँ यूटिलाइजेशन की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए क्यू नॉट इंटू एस नॉट। मास क्या है हमारे पास, V इंटू एक्स। बायोमास तो हमारे पास ये है, हमने पहले भी देख लिया, V इंटू एक्स। तो ये फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। नेक्स्ट फॉर्मूला इज स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। अब ये एक नया टर्म है, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। ये क्या होता है, सी स्लज वॉल्यूम इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली ये एक ऐसा पैरामीटर है जो कि स्लज सॉलिड्स की फिजिकल स्टेट को बताता है। ये स्लज सॉलिड्स कितने डेंस हैं, ये कितना ज्यादा सेटल करेंगे, जितना ये सेटल करेंगे हमारे लिए उतना अच्छा है, क्योंकि उतना हमारा रिसर्कुलेटेड डिस्चार्ज में जो MLSS कंसेंट्रेशन होगा वो उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में से हम एक सैंपल ले लेते हैं। ठीक है, हमने एक सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक था ये हमारे पास SST, इसमें से हमने कुछ सैंपल जो है वो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। 1 लीटर ऑफ सीवेज सैंपल हम जो लेते हैं वो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में से लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस स्लज सॉलिड हम इस सीवेज को सेटल करने देते हैं। ये हम एक फ्लास्क में डाल देते हैं, ये हमने डाल दिया, और अब हम इसको सेटल करने देते हैं। 30 मिनट का टाइम लेते हैं हम जनरली, एक स्टैंडर्ड और थंब रूल कह सकते हैं इसको। 30 मिनट का टाइम लेते हैं और हम इसको सेटल करने देते हैं। तो जब ये सेटल हो गया तो हम मेजर करते हैं ये स्लज सॉलिड्स का कितना वॉल्यूम हमारे पास आया इन मिलीलीटर पर लीटर। हमारे पास स्लज वॉल्यूम आएगा, हमने जो स्लज नीचे लिया, ये स्लज जो आया हमने ये वापस एक्सट्रैक्ट किया और हमने इसका वॉल्यूम मेजर कर लिया। वॉल्यूम मेजर के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे पास, तो इससे हमने क्या कर लिया, मिलीलीटर पर लीटर में हमने इसका वॉल्यूम मेजर कर लिया। डिवाइडेड बाय MLSS कंसेंट्रेशन हमने मेजर कर लिया। MLSS कंसेंट्रेशन क्या है कि बायोमास हमारे पास कितना है, तो हमने क्या किया, ये बायोमास कंसेंट्रेशन भी मेजर कर लिया। बायोमास कंसेंट्रेशन किस में होता है, मिलीग्राम पर लीटर में होता है, ये तो आपको पता ही है। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये किससे आ जाएगा, मिलीलीटर पर मिलीग्राम में हमारे पास SVI निकल के आएगा। लेकिन इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं वो होती हैं मिलीलीटर पर ग्राम। तो आप मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो मल्टीप्लाइंग बाय 10⁻³ तो मिलीलीटर बाय ग्राम आपका देगा आपको स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स क्या था, आपने सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से कुछ सीवेज लिया, उसको सेटल करने दिया, तो जो नीचे स्लज आपके पास बचा उसका वॉल्यूम आपने मेजर किया। क्योंकि आपने पर लीटर लिया था तो आपको डायरेक्टली वॉल्यूम लेना है, तो मिलीलीटर पर लीटर ऑफ द स्लज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय MLSS कंसेंट्रेशन विच इज इन मिलीग्राम पर लीटर, यू विल गेट द स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स इससे आपको निकल के आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। द नेक्स्ट फॉर्मूला इज स्लज डेंसिटी इंडेक्स।
SDI। आई होप दिस इज द 7th फॉर्मूला। तो स्लज डेंसिटी इंडेक्स आपके पास कैसे निकल के आएगा? सिंपली आपको क्या करना है, 1/SVI कर देना है। आपको पता है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स की यूनिट क्या थी? मिलीलीटर पर ग्राम। ये मैंने आपको स्टैंडर्ड यूनिट बताई थी, आपको इसको फाइनली कन्वर्ट करके SVI इसमें निकाल लेना है। लेकिन जो आपके पास स्लज डेंसिटी इंडेक्स की यूनिट होती है वो होती है मिलीग्राम पर लीटर। तो इसलिए आपको इसको 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट इस यूनिट में रख दो, मिलीलीटर पर ग्राम में रख दो SVI को, और ऊपर 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके पास जो भी आंसर निकल के आएगा वो मिलीग्राम पर लीटर में आपको स्लज डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू देगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट पॉइंट इज एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है छोटा सा, एंड दैट इज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इन ASP। आपको ASP में कुछ ऑक्सीजन देना पड़ेगा। अगर आप जो आपको पता है, जो आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑर्गेनिक कंटेंट पे फीड करते हैं वो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनारोबिक नहीं होते हैं। क्योंकि एनारोबिक होंगे तो उनका एंड प्रोडक्ट एल्कोहल्स और एसिड्स होगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें एंड प्रोडक्ट क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ ऑक्सीजन इसमें देते हैं। इसका एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ASP में कितना ऑक्सीजन देना है, Q0 × S0 - S डिवाइडेड बाय 0.68 माइनस 1.42 QW इंटू XU। ये क्या है? ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इन ASP। एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है, यू कैन रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। सो ये आपके फॉर्मूलेज हो गए। अब आपके एक छोटी सी इक्वेशंस हैं जो कि डेरिवेशन के बाद आएंगी। मैं डेरिवेशन करा दूं, बट द डेरिवेशन इज ऑफ नॉट यूज एट ऑल। आपको एंड रिजल्ट याद रखना चाहिए इस डेरिवेशन का, एंड द एंड रिजल्ट इज K = QW XU डिवाइडेड बाय VX प्लस KER। KER क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, पहले आप फॉर्मूला नोट कर लो। K = Q0 S0 - S into Y divided by VX. And one more very important formula in terms of theta C is theta C S0 - S Q0 into Y divided by 1 plus KD थीटा सी। एक थीटा सी का फॉर्मूला रह गया। थीटा सी का फॉर्मूला, थीटा सी क्या होता है? आपका जो स्लज है उसकी क्या एज है, या फिर मीन सेल रेसिडेंस टाइम भी कहते हैं इसको, और इसको स्लज एज भी कहते हैं। स्लज की कितनी एज है, स्लज कितने टाइम तक यहां पर पड़ा रहता है, तो वो निकालने के लिए क्या करते हैं हम? VX बायोमास का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Q0 - QW इंटू XE प्लस QW इंटू XU। ये जो है आपका, जो बायोमास आपका बाहर जा रहा है उसका MLSS कंसेंट्रेशन है। Q0 - QW आपका यहां बाहर जा रहा है, इसको आपने XE से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आपका QW यहां बाहर जा रहा है जो वेस्टेड है, इसका आपने MLSS से मल्टीप्लाई कर दिया QW, और ये डिनोमिनेटर में है और ऊपर न्यूमरेटर में भी क्या आएगा आपके पास? MLSS कंसेंट्रेशन आएगा। तो इससे आपको स्लज की एज मिल जाएगी। इसको मीन सेल रेसिडेंस टाइम भी कहते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, जो कि पूछा गया है। तो ये आपके पास 3 और इक्वेशंस हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। K क्या है आपके पास? K जो होता है वो आपके पास डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट होता है। किस रेट से ऑक्सीजन कम हो रहा है, इसे हम कहते हैं डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट। बाकी सारे टर्म्स आपको यहां पर पता है, बस 1-2 टर्म आपके लिए नए और हैं, KER और Y। ये मैं आपको बता दूं, Y जो होता है वो बेसिकली होता है प्रपोर्शन ऑफ द बायोमास जो कि आपका प्रोड्यूस कर रहा है MLSS कंसेंट्रेशन में। लेट मी रब। सी वाई क्या होता है आपके पास? जो बायोडिग्रेडेबल देसी आपके पास कुछ ऑर्गेनिक मैटर होता है। इस ऑर्गेनिक मैटर में कुछ पोर्शन जो है वो आपका MLSS में जाता है, और कुछ पोर्शन जो है वो आपका डाइजेस्टेड स्लज में चला जाता है। मतलब यह आपको कोई MLSS की कंसेंट्रेशन नहीं देगा। तो ऑर्गेनिक मैटर का कितना प्रपोर्शन आपको MLSS दे रहा है, यानी कि बायोमास दे रहा है, वो कहलाता है हमारे पास Y। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। इसे हम कहते हैं Y। और एक और टर्म था वहां पर जो हमने पढ़ा KER, तो दैट KER इज कॉल्ड एज द एंडोजीनस डिके कांस्टेंट। एंडोजीनस डिके कांस्टेंट। जब आप एक ग्राफ पढ़ोगे, जो कि आपको पता चलेगा जिस ग्राफ से कि किस तरीके से आपका बायोमास रिड्यूस होता है, किस तरीके से आपका फूड रिड्यूस होता है और किस तरीके से हमारे पास बायोमास का कंसेंट्रेशन चेंज होता है, तो ये आपका एक ग्राफ बनेगा। यहां पे हमारे पास कुछ फेजेस होते हैं, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज एंड फोर्थ फेज। तो हमारे पास जो
फर्स्ट फेज होता है, ये कहलाता है हमारे पास लैग फेज। ये हमारा फर्स्ट फेज है, इसे हम कहते हैं लैग फेज। इसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अभी बहुत धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत धीरे धीरे खाना खा रहे हैं, क्योंकि जैसे उनके पास फूड आता है वो धीरे धीरे कस्टम होते हैं एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से, और धीरे धीरे उनका डिकम्पोजिशन जो है वो शुरू होता है। इसे कहते हैं लैग फेज। सेकंड होता है लॉग फेज, ये आपका सेकंड फेज है, लॉग फेज। यहां पर आप देख सकते हैं स्लोप जो है बहुत ज्यादा है। यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फुली कस्टम हो चुके हैं एनवायरमेंट से और ऑर्गेनिक मैटर से, इसलिए डिकम्पोजिशन बहुत तेज चलता है। ये हमारा स्टेशनरी फेज है। थर्ड फेज इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज। यहां पर रेट जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि फूड जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कम हो जाएगा। और फाइनल फोर्थ फेज होता है आपका एंडोजिनस फेज। इसमें क्या होता है, फूड की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो जाती है और बिल्कुल ही जो प्रोसेस है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वो खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट। तो ये जो फेज है, यहां से इस पर्टिकुलर फेज में आपका जो भी डीऑक्सीजनेशन का रेट है उसे हम कहते हैं KER। So these formulas will be helpful to you to solve the numericals. Thank you everyone.